کہ سینٹ الیکشن کے حوالے سے مشاورت کے لیے مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ویڈیو لنک اجلاس میں شرکت۔ اس بارے میں تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف حسن رضا سے۔ آپ کو بتائیں کہ سینٹ الیکشن کے حوالے سے مشاورت کے لیے مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ویڈیو لنک اجلاس میں شرکت۔ آپ کو بتائیں کہ سینٹ الیکشن کے حوالے سے مشاورت کے لیے مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ویڈیو لنک اجلاس میں شرکت کی گئی۔ ہم آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا تعلیم کے فروغ کے لیے شاندار اور منفرد منصوبہ اسکول آن ویلز اور لائبریری آن ویلز پروجیکٹ شروع کرنے کا فیصلہ۔ اسکول آن ویل الیکٹرک رکشے میں بنایا جائے گا۔ رکشے کی چھت پر سولر پینل نصب ہو گئے۔ حسن رضا کی رپورٹ دیکھیے۔ پڑھو گے تو بڑھو گے، وزیر اعلیٰ مریم نواز کا تعلیم کے فروغ کے لیے شاندار اور منفرد منصوبہ۔ پنجاب میں اسکول آن ویلز اور لائبریری آن ویلز شروع کرنے کا فیصلہ۔ اسکول آن ویلز دور دراز اور دشوار گزار علاقوں میں بچوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کرے گا۔ اسکول آن ویلز الیکٹرک رکشے میں بنایا جائے گا۔ رکشے کی چھت پر سولر پینل لگائے جائیں گے۔ بچوں کو کتابیں بھی مہیا کی جائیں گی۔ اسکول آن ویلز میں بچوں کی دلچسپی کے لیے پینٹنگ کا سامان بھی موجود ہوگا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے اسکول آن ویلز منصوبے کی اصولی منظوری دے دی۔ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ بچوں کے لیے لائبریری آن ویلز پروجیکٹ بھی شروع کرے گا۔ بچوں کو نصاب کے علاوہ دیگر کتابیں بھی مہیا کی جائیں گی۔ لائبریری آن ویلز کارٹون سے مزین منی وین میں قائم کی جائیں گی۔ موبائل لائبریری پروجیکٹ بھی شروع کیا جائے گا۔ موبائل لائبریری میں اردو، انگلش اور سائنس کی کتابوں کے علاوہ میگزین بھی رکھے جائیں گے۔ صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے اسکول آن ویلز، لائبریری آن ویلز اور دیگر منصوبوں کے حوالے سے بریفنگ دی۔ پنجاب اسمبلی میں سینٹ کی خالی نشست پر انتخاب کل ہوگا۔ حکومتی امیدوار کو 261 ووٹوں کی حمایت حاصل، جبکہ اپوزیشن کے پاس 108 ووٹ ہیں۔ کامیابی کے لیے 184.5 ووٹ درکار ہیں۔ حمزہ خورشید کی رپورٹ دیکھیے۔ سینٹ کی خالی نشست پر کرنے کا معاملہ۔ پنجاب اسمبلی میں سینٹ کی خالی نشست پر انتخاب پیر 21 جولائی کو ہوگا۔ حکومتی امیدوار کو 261 جبکہ اپوزیشن کے امیدوار کو 108 ووٹوں کی حمایت حاصل۔ پنجاب اسمبلی میں کل نشستوں کی تعداد 371 ہے، جبکہ 2 نشستیں خالی ہیں۔ الیکشن کے لیے کل ووٹوں کی تعداد 369 ہے۔ مسلم لیگ نون کے کل ووٹوں کی تعداد 229، پیپلز پارٹی کے پاس 16 ووٹ ہیں۔ مسلم لیگ کاف کے ووٹوں کی تعداد 11، استحکام پاکستان پارٹی کے 7 ووٹ اور مسلم لیگ ضیاء کا 1 ووٹ ہے۔ اسی طرح سنی اتحاد کونسل کے 76 ووٹ، پی ٹی آئی کے ووٹوں کی تعداد 27، تحریک لبیک اور مجلس وحدت المسلمین کا 1 ووٹ ہے۔ سینٹ کی نشست پر 4 امیدوار مد مقابل ہیں۔ مسلم لیگ نون کے امیدوار حافظ عبدالکریم، تحریک انصاف کے امیدوار مہر عبدالستار، جبکہ ختیجہ صدیقی اور اعجاز منہاس آزاد امیدوار کے طور پر میدان میں ہیں۔ امیدوار کی کامیابی کے لیے 184.5 ووٹ درکار ہیں۔ حمزہ خورشید، لاہور نیوز۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کا کہنا ہے ڈاکٹر شاہد منیر کی قیادت میں یو ای ٹی کا مالی بحران ختم ہونا خوشائند ہے۔ یونیورسٹی میں خالی سیٹوں پر جلد تقرریاں کی جائیں گی۔ وائس چانسلر یو ای ٹی کی گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر سے ملاقات۔ گورنر پنجاب نے وی سی ڈاکٹر شاہد منیر کی یو ای ٹی میں مالی اصلاحات کو سراہا۔ گورنر پنجاب کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر شاہد منیر کی قیادت میں یو ای ٹی کا مالی بحران ختم ہونا خوشائند ہے۔ یو ای ٹی میں ٹریئر اور خزانہ دار اور دیگر خالی سیٹوں پر جلد تقرریاں عمل میں لائی جائیں گی۔ یونیورسٹی میں شفافیت اور تسلسل کے لیے جلد بھرتیوں کی ضرورت ہے۔ غیرت کے نام پر قتل غیر شرعی، غیر اسلامی اور غیر قانونی ہے۔ پاکستان علماء کونسل نے فتویٰ جاری کر دیا۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل طاہر محمود اشرفی کا کہنا ہے کہ قتل کرنے والوں پر دہشت گردی قانون کے تحت مقدمہ چلایا جائے۔ ایسے افراد کو سخت سے سخت سزائیں دی جائیں۔ بلوچستان میں خاتون کے قاتلوں کو فوری گرفتار کیا جائے۔ ایک بیٹی کو دہشت گردوں نے غیرت کے نام پر قتل کر دیا۔ اسلام عورت کو یہ حق دیتا ہے کہ اس سے شادی کے معاملات میں مشاورت کی جائے۔ اگر کسی جگہ پہ ماں باپ کو اختلاف ہے تو اس پہ مشاورت ہو سکتی ہے، بات چیت ہو سکتی ہے، لیکن غیرت کے نام پر اس طرح بے دردی کے ساتھ ایک بیٹی کو قتل کر دینا، اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ میں سب سے پہلے تو چیف جسٹس آف پاکستان سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس پہ سو موٹو لیں۔ وزیر اعظم پاکستان، وزیر اعلیٰ بلوچستان، گورنر بلوچستان، آئی جی بلوچستان سے کہتا ہوں کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر ان مجرموں کو گرفتار کر کے انسداد دہشت گردی کی عدالت میں مقدمہ چلائیں، اور انصاف کا تقاضا تو یہی ہے کہ اسی جگہ پہ ان قاتلوں کو سزا دی جائے۔
इतवार की छुट्टी मनाने और गर्मी को दूर भगाने के लिए शहरियों ने वाटर पार्क्स का रुख कर लिया। शहरी ठंडे पानी में होते लगाकर मस्तियां करते और अपनी छुट्टी को मजीद लुत्फानंदोज बनाते हुए नजर आए। मजीद क्या सूरत हाल है जानते हैं हमारे नुमाइंदे मुबीन हैदर से। जी मुबीन, बताइएगा। बिल्कुल इसी तरह से है कि इतवार की छुट्टी का मजा दुबाला करने के लिए और गर्मी का तोड़ निकालने के लिए लोगों ने जो है वाटर पार्क्स का रुख कर लिया है। दोस्तों के हमरा, कजन्स के हमरा लोगों ने जो है वाटर पार्क्स का रुख किया है ताकि गर्मी का भी जोर तोड़ा जा सके, उसके साथ साथ छुट्टी को भी इंजॉय किया जा सके। लोगों ने ठंडे पानी में तैराकी करके और डुबकियां लगाकर जो है और गौते लगाकर बड़ा खूबसूरती से इंजॉय किया है। कुछ बच्चे मौजूद हैं कि यहाँ पर इंजॉय करने आए हुए हैं। बेटा, आप यहाँ पर आए हुए वाटर पार्क में, कैसा लग रहा है? क्या कैसी छुट्टी मनाई है आपने? आज इतवार है, बड़ा मजा आया यहाँ पे। ठंडा पानी है, ऊपर से ठंडा पानी है, रात का दिन बड़ा मजा आ रहा है यहाँ पे। यार सुना, ठंडा पानी है, बड़ा एंजॉय कर रहा था। आप बताएं यार, छुट्टी कैसी गुजारी आपने और कैसा लग रहा है आपको नहा के? जी ऐसी है, छुट्टी हमने बहुत अच्छी गुजारी और हमें इधर नहाने का भी बहुत मजा आया। फिर आपने सुना प्रॉपर एंजॉय कर रहे हैं, पूल के अंदर मौजूद हैं। सर आप बताइएगा कि वीक डेज की निस्बत जो है वीकेंड के ऊपर क्या रुझान रहता है? वीक डेज में ज्यादा कस्टमर आते हैं या वीकेंड पर ज्यादा रश होता है? संडे में काफ़ी माशाल्लाह मकदार में लोग आते हैं बनिस्बत बाकी दिनों के, और गर्मी का जो जोर होता है ना, उस दिन बहुत ज़्यादा रश होता है संडे को। और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत ठंडा पानी है। क्योंकि आपने सुना ताज़ा ठंडा पानी भरा जाता है ताकि शहरी भी लुत्फानंदोज हो सकें। और इसी तरह से जो है खास तौर पे गर्मियों के अंदर बड़ा सीजन समझा जाता है कि खास तौर पे इस मौसम या गर्म मौसम के अंदर शहरी जो है अपनी गर्मी भगाने के लिए, छुट्टी एंजॉय करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के वाटर पार्क्स का या पूल्स का रुख करते हैं ताकि साथ छुट्टी भी एंजॉय कर सकें और साथ में जो है वो गर्मी का तोड़ भी उसको भी ढूंढ सकें। आगे बढ़े और आपको बताएं कि सब्जी मार्केट में तेजी का रुझान। मौसमी असरात से सब्जियों की सप्लाई में कमी आ गई। टमाटर एक ही रोज में 20 रुपए फी किलो महंगे हो गए। आलू, भिंडी, कद्दू और शिमला मिर्च भी पहुंच से दूर। ब्रायलर गोश्त की कीमत में कमी, जबकि अंडे मजीद महंगे हो गए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। अशिया जरूरिया की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी। सब्जियों की सप्लाई मौसमी हालात के जेर असर। सरकारी रेट लिस्ट में टमाटर के दाम 20 रुपए इजाफे से 90 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में दर्जा अव्वल टमाटर 120 से 140 रुपए फी किलो तक मिल रहा है। आलू 80 रुपए के बजाय 100 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहे हैं। परचून में प्याज 70, लहसुन चाइना 350, अदरक 600 रुपए फी किलो है। देसी लीमू 400, भिंडी 200, कद्दू 240 और शिमला मिर्च 180 रुपए फी किलो बेची जा रही है। सब्ज धनिया 100 रुपए पाव तक जा पहुंचा है। दुकानदार कहते हैं बारिशों से सब्जियों की पैदावार और तरसील मुतासिर हो रही है, जिससे दाम बढ़ रहे हैं। बारिशों की वजह से ये सैलाबी जो रेले होते हैं वो खेतों में चले जाते हैं, वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है पानी, उसमें धनिया वगैरह इस तरह का सौदा बिल्कुल तबाह हो जाता है। जब पैदावार कम होगी या उसमें जो खराबी आ जाएगी सौदों में, कम प्रोडक्शन कम होगी, उसकी सप्लाई कम होगी, तो ये सौदे इकोनॉमिक तौर पे आप सोचें तो ये महंगे ही होंगे। दूसरी जानिब ब्रायलर गोश्त की फी किलो सरकारी कीमत 22 रुपए कमी से 562 रुपए मुकर्रर की गई। फार्मी अंडे 1 रुपया इजाफे से 263 रुपए फी दर्जन हो गए। शुगर मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि हुकूमत शुगर सेक्टर को मुकम्मल डीरेगुलेट करे। शुगर इंडस्ट्री टेक्सटाइल के बाद पाकिस्तान में दूसरी बड़ी ज़राई सनत है। शुगर मिल्स एसोसिएशन के जनरल बोर्ड इजलास में तर्जुमान शुगर मिल्स एसोसिएशन का कहना था कि शुगर इंडस्ट्री $4 बिलियन की चीनी की दरामदाद का मुतबादिल फराहम करती है। शुगर इंडस्ट्री क्रशिंग सीजन में 1000 अरब रुपए की कारोबारी सरगर्मी पैदा करती है। विफाकी, सूबाई और मकामी हुकूमतों को टैक्सों की मद में तकरीबन 225 बिलियन रुपए अदा करती है। हुकूमत को चाहिए कि वो शुगर सेक्टर की डीरेगुलेशन के हवाले से मुस्तकिल पॉलिसी अपनाए। ट्रैफिक पुलिस का बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन जारी। खिलाफ वर्जी पर 2000 रुपए का चालान किया जा रहा है। 2 रोज के दौरान 5000 के करीब चालान किए जा चुके हैं। जैन अली की रिपोर्ट देखिए। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों की शामत आ गई। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन। ट्रैफिक पुलिस ने लाहौर के मुख्तलिफ पॉइंट्स पर बैरियर्स लगा लिए। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवार का 2000 रुपए का चालान किया जा रहा है। 2 रोज के दौरान 15000 के करीब चालान किए जा चुके हैं। रवां साल हेलमेट की खिलाफ वर्जी पर 1,29,636 चालान किए जा चुके हैं। ट्रैफिक इंचार्ज मुगीजुल हसन का कहना है कि हमारा मकसद हेलमेट की पाबंदी को हर सूरत यकीनी बनाना है। हमारा क्रैकडाउन जारी रहता है, लेकिन अब ये स्पेशल कैंपेन शुरू किया है। ट्रैफिक पुलिस को हेलमेट पहनाना उसकी जिम्मेदारी है। हम अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं और इसके अलावा इसमें कोई हमारा मकसद नहीं है। मोटरसाइकिल सवार हेलमेट ना पहनने पर मुख्तलिफ हीले बहाने बनाते रहे और हेलमेट को जरूरी भी करार दिया। तो यही मैसेज दूंगा कि हेलमेट पहन के बाहर निकलें, ठीक
कि लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। हेलमेट पहनना, ये सर में खारिश हो रही थी, अभी ये अंडरपास से उतारा है। पसीने से सर भरा हुआ था, हेलमेट पास पकड़ा हुआ था, पहना नहीं था, अभी निकल के चले ही हैं, सामने से आ गया। सीटीओ लाहौर ने बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों के साथ नरमी बरतने वाले ट्रैफिक एहलकारों के खिलाफ भी कार्रवाई करने का इंदिया दिया है। कैमरामैन इरफान के साथ जैन अली, लाहौर न्यूज़। इंसानी जानों से खेलने वालों के गिर्द शिकंजा सख्त। हेल्थ केयर कमीशन की सूबे भर में इंसदाद अतायत के लिए कार्रवाइयाँ। 721 अताइयों की दुकानें बंद। 456 गैर मुस्तनिद अफराद ने कारोबार तर्क कर दिए। तर्जुमान कमीशन के मुताबिक PHC की इन्फोर्समेंट टीमों ने 2815 इलाज गाहों पर छापे मारे। कमीशन मजीद 1386 इलाज गाहों की निगरानी जारी रखेगा। लाहौर में PHC की टीमों ने 155 गैर कानूनी दुकानें सील की। गुजरावाला में 37, फैसलाबाद 34, शेखुपुरा 33 और शेखुपुरा में 30 मराकज़ सील किए गए। अब तक कमीशन 2,22,500 से ज़ायद मराकज़ पर छापे मार चुका है। 62,000 गैर कानूनी मराकज़ सेहत सील किए जा चुके हैं। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम बिलासूद कर्जों की फराहमी के लिए बैंक ऑफ पंजाब और महकमा हाउसिंग में मुआहदा तय पा गया। अब तक 52,000 लोगों में 60 अरब रुपए के कर्जे तकसीम किए जा चुके हैं। वजीर हाउसिंग बिलाल यासीन कहते हैं अगले माह तक 10 अरब से ज़ायद रकम तकसीम की जाएगी। मुआहदे की मुफाहमती याददाश्त पर DG फाटा सिकंदर ज़िशान और बैंक ऑफ पंजाब के उमर खान ने दस्तखत किए। वजीर हाउसिंग पंजाब बिलाल यासीन और सदर बैंक ऑफ पंजाब जफर मसूद ने तकरीब में खसूसी शिरकत की। वजीर हाउसिंग पंजाब बिलाल यासीन का कहना था कि प्रोग्राम के तहत माहाना इकसात कीमत में 90 करोड़ रुपए जमा भी हो चुके हैं। रवा माली साल में तमाम घरों की तामीर के लिए बिलासूद कर्जों की फाइनेंसिंग बैंक ऑफ पंजाब ही करेगा। सालाना अहदाफ की बरवक्त तकमील के लिए वज़ीर आला पंजाब ने MFIs की तजावीज़ भी मंजूर कर ली हैं। अब आपको बताएं कि हेल्थ रिफॉर्म से हेल्थ सिस्टम पर लोगों का एतमाद बहाल हो रहा है। वज़ीर सेहत और बहबूद आबादी ख्वाजा इमरान नज़ीर कहते हैं हस्पतालों में अद्वियात की कमी को तरजीही बुनियादों पर पूरा किया गया है। यूनिसेफ के ताउन से माँ और बच्चे की सेहत को मज़ीद बेहतर बनाया जा सकता है। मोहम्मद बिलाल की रिपोर्ट देखिए। सूबाई वज़ीर सेहत और बहबूद आबादी ख्वाजा इमरान नज़ीर की यूनिसेफ पंजाब के दफ्तर आमद। डॉक्टर कुरतुलैन अहमद ने यूनिसेफ के प्रोग्राम्स बारे ब्रीफिंग दी। वज़ीर सेहत की हेल्थ प्रोफेशनल की सदादकार में इजाफे, तरबीती प्रोग्राम्स और सेहत के निज़ाम को मजबूत करने में यूनिसेफ के किरदार की तारीफ। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने खसूसी तावन पर यूनिसेफ का शुक्रिया अदा किया और मुतल्लिका हुकाम को टेक्निकल वर्किंग ग्रुप तश्कील देने की हिदायत की। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा जनूबी पंजाब में माँ और बच्चे को सेहत की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने पर खास तवज्जो दी जा रही है। वज़ीर आला मरीम नवाज बच्चों और माओ के सेहतमंद महफूज मुस्तकबिल को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन वसाइल फराहम कर रही हैं। यूनिसेफ के तावन से माँ और बच्चे की सेहत को मजीद बेहतर बनाया जा सकता है। वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना था बेहतरीन तिबी सहूलियात की फराहमी के लिए पॉलिसी मामलात में यूनिसेफ की रहनुमाई और तजर्बे से इस्तेफादा करेंगे। मोहम्मद बिलाल, लाहौर न्यूज़। जस्टिस मिसालिया नीलम के बतौर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट 1 साल में तारीखी अदालती इस्लाहात, ज़ेर अल्तवा केसेस में कमी, जजेस की खाली असामी को पुर किया गया। डिजिटलाइजेशन केस मैनेजमेंट सिस्टम का इजरा हुआ। जजेस के लिए हेल्थ अलाउंस, मातहत अदलिया में शफाफियत का निज़ाम समेत दीगर अहम संगमील अबूर किए गए। सीनियर कानूनदान एहसन भून समेत वकला तंजीमों ने चीफ जस्टिस मिसालिया नीलम पर भरपूर एतमाद का इज़हार करते हुए ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। लाहौर से मोहम्मद इशफाक की खसूसी रिपोर्ट देखिए। 11 जुलाई 2024 को चीफ जस्टिस मिसालिया नीलम हल्फ उठाकर लाहौर हाई कोर्ट पहुंची तो उनके सामने चैलेंजेस की भरमार थी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिसालिया नीलम की पॉलिसीज के बायस तारीख में पहली मरतबा ज़ेर इल्तवा केसेस में बड़ी तादाद में कमी आई और लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा केसेस की तादाद कम होकर 1,87,938 रह गई। गुज़श्ता एक वर्ष में 1,53,044 केसेस निपटाए गए। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक प्रिंसिपल सीट पर 82,236 केसेस निपटाए गए। भावलपुर बेंच में 18,411 और मुल्तान बेंच पर 35,910 केसेस निपटाए गए। एक वर्ष के दौरान रावलपिंडी बेंच में 16,487 केसेस को निपटाया गया। इसी तरह पंजाब की मातहत अदालतों में तकरीबन 2,19,000 से जायद केसेस निपटाए गए। वकला की फलाह बहबूद के लिए तारीखी इकदामात करने पर सीनियर कानूनदान एहसन भून का कहना है कि चीफ जस्टिस मिसालिया नीलम का दौर सुनहरी दौर है। हमारी मोहतरमा चीफ जस्टिस साहिबा लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम साहिबा ने एक साल बहुत मसाली गुजारा है, जिसमें बार और बेंच के ताल्लुकात और इसी तरह तमाम सूबे की बार एसोसिएशन में लेडीज़ के लिए अलहदा बार रूम, उनके लिए बाकी जो फैसिलिटीज़ हैं, डे केयर सेंटर, टॉयलेट्स एट्सेट्रा, उनके लिए कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर के लिए काम किया है।
चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिसालिया नीलम के अहकामात पर तारीख में पहली मरतबा पंजाब में तमाम मुकदमात के चालान अदालतों में जमा करवा दिए गए। 4,70,000 मुकदमात के चालान 10 सालों में अदालतों में जमा न होने पर फैसले ताखीर का शिकार थे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिसालिया नीलम ने तारीख में पहली मरतबा FIR से लेकर मुकदमे के फैसले तक तमाम रिकॉर्ड वन लिंक पर फराहम करने से मुतल्लिक पायलट प्रोजेक्ट का आगाज किया। PITB के ताउन से मातहर अदलिया, पुलिस, प्रोसिक्यूशन और जेलों के सिस्टम को इकट्ठा किया गया। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब सैयद फरहाद अली शाह कहते हैं कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिसालिया नीलम के विजन से इस्तेफादा कर रहे हैं। ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहबा ने ये साबित किया है कि उन्होंने जेंडर के सीक्वेंस के अंदर एक आदमी के मुकाबले में ज़्यादा काम करके दिखाया, और मैं समझता हूँ कि बतौर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के एक जज तो वो बहुत अच्छा उनका हमेशा से रोल रहा, लेकिन बतौर चीफ जस्टिस जो उन्होंने सलाहत की हैं उसका बहुत इफ़ेक्ट हुआ है हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पे। आप देखें कि बहुत से केसेस की पेंडेंसी ख़त्म होकर रह गई है, चलान की पेंडेंसी 0 हो गई। एक साला दौर में चीफ जस्टिस मिसालिया नीलम ने जजेस की वेलफेयर के लिए भी तारीखी इकदाम किए। जजेस के हेल्थ अलाउंस के लिए 314.7 मिलियन मुख्तस किए गए। हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड जारी किए गए, जबकि पंजाब की मातहर अदलिया के जजेस के लिए स्कीम के तहत 32 गाड़ियाँ और 93 लैपटॉप भी खरीदे गए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिसालिया नीलम ने दौरे हाजिर के तकाजों के मुताबिक अदालती अमूर को डिजिटलाइजेशन के लिए भी तारीखी इकदाम किए। पहली मरतबा केसेस की कार्रवाई का स्टेटस जानने के लिए लाइव स्टेटस के प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया। साबिक वफाकी सेक्रेटरी कानून पीर मसूद चिश्ती ने चीफ जस्टिस मिसालिया नीलम के इकदामात को तारीखी करार दिया। मोहतरमा चीफ जस्टिस साहबा जस्टिस आलिया नीलम, उन्होंने अपनी तैनाती के 1 साल मुकम्मल होने तक जो काम किए हैं, मैं समझता हूँ वो काफ़ी पिछले सालों में नहीं हो सके। लाहौर हाई कोर्ट की 150 साल तारीख में पहली मरतबा लाहौर हाई कोर्ट के इंतजामी अमूर को बेहतर बनाने के लिए फुल कोर्ट की मंजूरी के बाद हाई कोर्ट के रूल्स में मुतअद्दी तरामीम की गयी। जुडिशल ब्रांचेस की इंस्पेक्शन का हुक्म दिया गया। जेरे इल्तवा केसेस और निपटाए गए केसेस का दुरुस्त जायजा लेने के लिए केस मैनेजमेंट सिस्टम बेहतर बनाया गया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की हदायत पर डायरेक्टोरेट ऑफ जुडिशरी ने जुडिशल ब्रांचेस में हजारों केसेस की फाइलों का ऑडिट किया। लाहौर हाई कोर्ट के फैसलों की मुसद्दका कापी की बरवक्त फराहमी के लिए ब्रांचों में ट्रैकिंग सिस्टम मुतारिफ करवाया गया। चीफ जस्टिस मिसालिया नीलम के हुक्म पर जुडिशल प्रोसेस को बेहतर करने के लिए कलर कोड कॉज लिस्ट मुतारिफ करवाई गई, जिसमें पीली, सबज, गुलाबी रंग की कॉज लिस्ट शामिल हैं। फाइल ट्रैक सिस्टम के तहत QR कोड मुतारिफ करवाया गया। जजेस की ट्रेनिंग के लिए रिसर्च सेंटर का क्याम भी संगे मील साबित हुआ। ज़ेरे इल्तवा मुकदमात को कम करने के लिए मसालहती सेंटर के मंसूबे को प्रमोट किया गया। साबिक वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल हफीजुर रहमान चौधरी कहते हैं कि चीफ जस्टिस मिसालिया नीलम के इकदामात से साइलिन को बरवक्त इंसाफ की फराहमी का ख्वाब पूरा हुआ। बारों में बेहतरीन सहूलतें मुहैया की हैं, और मैं ख़ुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करूँगा उनका कि उन्होंने फोर्टाबाद में बेहतरीन इंतज़ाम किया है और हरुणाबाद, बहावल नगर में बेहतरीन इंतजाम किया। चीफ जस्टिस मिसालिया नीलम का पंजाब की मातहत अदालतों में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस, एडिशनल सेशन जजेस, सीनियर सिविल जजेस और सिविल जजेस की ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए सिफारिश करवाने वाले जजेस के खिलाफ मिसकंडक्ट की कार्रवाई का फैसला हुआ और वाज़ेह किया गया कि जिस जज को कोई भी मसला हो बराह रास्त अपनी ट्रांसफर के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस को तय करदा तरीके के मुताबिक आगाह करे। डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में डिसिप्लिन और मेयार की बेहतरी के लिए शिकायत सिस्टम को मुतारिफ करवाया गया। मुख्तलिफ कैटेगरीज में 3,465 शिकायत मौसूल हुई, जिसमें से 3,176 शिकायत को निपटा दिया गया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिसालिया नीलम साइलिन को अमली तौर पर बरवक्त इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाने के साथ साथ वकला की फलाह बहबूद के लिए भी इक़दामात का सिलसिला जारी रखे हुई हैं। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़। अब आपको बताएं कि बादामी बाग पुलिस ने अंधे कत्ल का सुराग लगा लिया। 55 साला शख्स को गला काट कर मारने में मुलविस नौजवान लंडी कोतल से गिरफ्तार। मुलजिम यासिर का कहना है कि मकतूल इसराइल उसकी नाजेबा वीडियो वायरल करने की धमकियां देता था, इसीलिए उसकी जान ली। SP ऑपरेशन सिटी बिलाल अहमद ने अपने ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि पुलिस ने बादामी बाग में 55 साला शख्स इसराइल के अंधे कत्ल का सुराग लगा लिया। मुलजिम यासिर खान को लंडी कोतल से गिरफ्तार करके आला कत्ल बरामद कर लिया गया। 10 जुलाई को उसको बुलाया, जिस दिन असल में कत्ल हुआ उस दिन फिर उसने पूरी नीयत के साथ इसका कत्ल करने का फैसला किया। छुरा लेके आया, वो जो परना था
बड़ा सा कपड़ा था उससे गला घोंटा और जो है वो अपना जो है वो जब वापस वो वहाँ पे भूल गया और जब वापस उसको लेने के लिए आया और बॉडी को उसने बाद में डंप किया और इस तरह उसने पूरी कार्रवाई की। और इसमें हमने बहुत ज़्यादा पिछले 3-4 दिन संडे को हमने काम शुरू किया, फ्राइडे को जाके 4-5 दिनों की एफर्ट के बाद हमें लंडी कोतल पेशावर वाली साइड से हमने गिरफ्तारी की और ये सारे चीज़ें जो है उससे कन्फेस एडमिट भी उसने की, आला कत्ल भी बरामद किया, वो जो छुरा था और जो कपड़ा था जिससे उसने गला घोंट के मारा वो भी हमने बरामद किया। एसपी ऑपरेशन सिटी बिलाल अहमद ने मजीद बताया कि मकतूल इस्राइल ने बदामी बाग एरिया में बच्चों से अलग क्वार्टर ले रखा था। मुलजिम यासर खान ने इस्राइल को ज्यादती के बाद अपनी नाजेबा वीडियो बनाने के रंज पर गला काट कर मारा। यासर ने 55 साला इस्राइल की नाश को ड्रम में छुपाया और फरार हो गया और लोकेशन बदलता रहा। मुलजिम बहुत ज़्यादा शातिर था, बार बार अपनी लोकेशन चेंज कर रहा था और अपने भाई को पीछे कॉल भी करता था कि जो है मैं इधर हूँ और फिर वहाँ पे वो नहीं मौजूद होता था। हमारा मुलजिम ट्रेस हो गया, गिरफ्तार हो गया लंडी कोतल पेशावर वाली साइड से। उसके बाद इसने फिर इंकशाफ किया। पुलिस के मुताबिक मकतूल इस्राइल के पास मुलजिम यासिर की नाजेबा वीडियोस थीं जिन्हें वो वायरल करने की धमकियां देता था। इसी वजह से यासिर ने इस्राइल को कत्ल किया। वफाकी वज़ीर कौमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर हुसैन कहते हैं गंदम की पैदावार में इस साल शॉर्ट फॉल का एतराफ़ करता हूँ। PTI हुकूमत ने मौशत तबाह की, फी एकड़ पैदावार बढ़ाकर 60 मन तक ले जाएंगे। भारत पाकिस्तान का पानी रोकने की जुर्रत नहीं कर सकता। ये रिपोर्ट देखिए। वफाकी वज़ीर कौमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर हुसैन ने ट्रैक्टर कंपनी की इफ्तिताही तकरीब में कहा कि ज़राअत पाकिस्तानी मैशत की रीढ़ की हड्डी है। फी एकड़ पैदावार और बढ़ाकर 60 मन तक ले जाएंगे। गंदम की पैदावार में इस साल शॉर्ट फॉल का एतराफ़ करता हूँ। ये एग्रीकल्चर जो हमारी है ये बैकबोन है हमारी इकोनॉमी की। पीछे अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस पे काफ़ी एक्सपोर्ट हमारी हुई है। एग्रीकल्चर सेक्टर को जब तक हम ज़्यादा मजबूत नहीं करेंगे उस वक्त पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। हमें जो आज वीट मिल रही है 30 मन पर एकड़ एवरेज है, उसको हमने 60 पे लेके जाना है। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने मजीद कहा कि PTI हुकूमत ने मैशत तबाह की। मैशत की बहाली के लिए मुश्किल फैसले किए गए। गैर मयारी बीज तैयार करने वाली 400 कंपनियों के लाइसेंस मनसूख कर दिए। गैर मयारी बीज की तैयारी पर 10 साल कैद की सजा का कानून मंजूर किया गया। PTI की हुकूमत कहते हैं उसने मैशत का बेड़ा गर्क कर दिया। बीज में हमने पीछे कोई 1200 कंपनी यहाँ काम कर रही हैं बीज पे, तो जिसमें ज़्यादातर हमारा ख्याल है कि जो बीज देती हैं कंपनियां वो म्यारी बीज नहीं देती। पीछे कोई 400 के करीब 400 से कोई ज़्यादा ही हमने कैंसिल किए हैं लाइसेंसेस के। गैर म्यारी बीज देने वालों के लिए हम नया कानून भी बनाया कि बड़ी सख्त सजाएं दें। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन का तकरीब में मजीद कहना था कि पानी का ऐसा निज़ाम है जो नीचे की जानिब आता है। भारत पाकिस्तान का पानी रोकने की जुर्रत नहीं कर सकता। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से इतना है।